शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। On fire for God. परमेश्वर के लिए आग से भर And if जाए। they're on fire for God, जब आप परमेश्वर के लिए भरे होगा आग they से, have to multiply. उन्हें गिनती में बढ़ना ही होगा, Because they're not on fire, they become like that. क्योंकि वे आग से भरे नहीं हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। I'm not here for the souls only, I'm here for you. मैं सिर्फ आत्माओं को जीतना नहीं चाहता, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। For you, so that you be on fire and you win the lost, and then the lost begin to be found, then they become disciples. आपके लिए यहाँ आया हूँ ताकि आप आग से भर जाएं और फिर आप आत्माओं को खोज करके लेकर आओगे और वे यहाँ पर चेले बन What's the जाएंगे। use of you bringing another soul but you not on fire? जब आप दूसरी आत्माओं को लेकर आते और आप आग से नहीं भरे हो, In the house, in the community, among your friends, they must see the fire. कि मित्रों के बीच में उन लोगों को आग को In देखना your है। office, they must see something about you. आपके दफ्तर में लोग देखें कि आप बिल्कुल अलग हैं। If they don't see anything, जब वे कुछ न देखेंगे, that means you fail. इसका मतलब आप असफल हो गए हो। That means you do not seek God. इसका मतलब कि आप परमेश्वर की खोज नहीं करते। You seek God only in the church, something is wrong. यदि आप केवल कलीसिया में परमेश्वर को खोजते हो तो कोई गड़बड़ी है आपके अंदर। You seek God as an individual, then you come together, the fire of the Holy Spirit will come. जब आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को खोजोगे और फिर एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पर आओगे तो परमेश्वर का आग आपको भर देगा। But I still believe मैं अभी भी विश्वास करता हूँ, there is still a church. फिर भी एक कलीसिया है, A church that is in the last days, अंतिम दिन की कलीसिया, that still gets excited वह उत्साहित हो जाता है about the things of God. परमेश्वर की बातों के Are विषय। you going to be that church? क्या आप ऐसी कलीसिया बनना Are चाहते? you going to be that church? क्या आप ऐसी कलीसिया? Then get your life right. तो अपने जीवन को सुधार लो, Get your lives right. आपके जीवन को सुधार Get लो, the fear of the Lord inside your life. परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाए, Get the holiness into your life. आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए, Get the character of Christ into your life. मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाए, Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए, Pray. Tongue talking people, it's okay. प्रार्थना करिए और अन्य भाषा को बोलिए। You got to speak in tongue. आपको अन्य भाषा बोलना है, Even if you don't understand, you pray in the Spirit. यदि आप नहीं समझते हो फिर भी आपको अन्य भाषा में बोलना है। And the more you begin to pray, and then suddenly understanding comes. जितना ज्यादा आप आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे फिर अचानक आपको समझ में But आएगा। if you don't step out by faith, if you don't step out by faith, if you don't speak, if you're not gonna, if you're gonna go into your office and then there's so many people gonna attack you, you go to the bathroom, you pray in tongue. आप दफ्तर में जाते हो, वहां पर बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ जाते हैं, आप वहां बाथरूम में जा सकते हैं और अन्य भाषा में बोल सकते हैं वहां पर। You pray in the Spirit, and you go out, and then you share, then you speak, then you get the power of the Lord will influence the rest of the people. आप बाहर आकर के फिर उनसे बातचीत करते हो तो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य लोगों पर प्रभाव डालेगा। A church that isn't afraid of the fire. एक कलीसिया जो उस आग से डरती नहीं है, A church that get excited when they read the word of John the Baptist. कलीसिया जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वचन को पढ़कर उत्साहित हो जाती है। Matthew chapter 3 verse 11. मत्ती अध्याय 3 वचन 11। He says like this. I indeed baptize you with water unto repentance, but there is one coming after me. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Our God is a God of fire. हमारा परमेश्वर आग का परमेश्वर है। The word of God calls him a consuming fire. वचन में लिखा है कि वह भस्म करने वाली आग है।
Hello? Number one, पहली बात, to have fire, there must be a kindle. आग को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, There must be fuel या फिर तेल होना चाहिए, or ignite the fire. उस आग को जलाने के लिए. So on the day of Pentecost, 120 that were there. पिंतेकुस्त के दिन में 120 लोग थे. A people of God, I don't just believe only in the what the Bible say 120 down there and finish down there. I believe down here 300, 400, 100. If we are in one mind, one accord, God's holy fire, consuming fire can come down. मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 120 लोग हैं वही प्राप्त करेंगे, नहीं, यहाँ 300, 400 जितने लोग भी हैं, एक मन होंगे तो परमेश्वर का आग हम पर उतरेगा. 120 were there in one mind and one accord. 120 लोग ऊपरी कोठरी में थे, एक मन होकर एक जगह में इकट्ठे हुए. Ready to be burned. वे तैयार थे जलने के Are you लिए. ready to be burned? क्या आप तैयार हैं जलने When के the लिए? Holy Ghost fell, they were enveloped in the fire. जब पवित्र आत्मा उतरा वे लोग आग में भर गए थे. Oh, that fire was wild. वो जो आग है वो बहुत ही विशाल थी, Out of control fire. उनके नियंत्रण से बाहर थी, But it was of the Holy Ghost. लेकिन वो पवित्र आत्मा की आग थी. You know the holy fire when it comes upon you. Kiralabashandalabata, kipikete. जब पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आता है तो आप अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते. It transforms you. वह आपको पूरी तरह रूपांतरित कर देता है. It consumes all the filthiness in you, आपके अंदर जितनी गंदगी है उस सबको दूर कर देता है. making you holy unto Him. आपको पवित्र बना देता है. All the wrong thoughts burning down. सारे जो बुरे विचार हैं वो जल जाते हैं. And only the holy fire in you. और अब केवल पवित्र आग आपके अंदर रहेगा. Now think, how righteous are you now? अभी जरा सोच के देखिए कि आप कितने धर्मी हो. How many of you are thinking what is right in your own eyes? कितने लोग सोचते हैं कि आपके मन के अनुसार वही ठीक है. Oh, can I do this or can I do that? Oh, come on. If you are with the Holy Spirit in you, oh, you have no need to worry because He will guide you. यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है वह आपका मार्गदर्शन करेगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. He is disciplined वह अनुशासित है and He follows the rules. और वह नियम के अनुसार चलता है. And the church that follows Him follows the rules. कलीसिया जो पवित्र आत्मा का अनुकरण करते हैं वो नियम के अनुसार चलते हैं. Is disciplined. वह अनुशासित है. Working together. एक साथ मिलकर काम करते हैं. And when Peter speak, everybody listen. और जब पतरस बोला तो सारे लोग उसको सुनते हैं. Yeah, when the man of God speak, then you go back, but this one, no, this one, yeah, so yeah. यहाँ जब परमेश्वर का व्यक्ति बोलता है तो आप अनसुने कर देते हो. Why don't you submit to the word of God? आप परमेश्वर के वचन के सम्मुख समर्पित हो जाइए. Why are you not listening? आप क्यों सुनते नहीं हो? Why are you not practicing? क्यों इसका अभ्यास नहीं करते? Can you see how stubborn we become? हम कितने जिद्दी बन जाते हैं. How can God use you? कैसे परमेश्वर आपका उपयोग करेगा? Of course, God wants to use everybody. परमेश्वर आप में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहता है. If only we allow Him to use us, then He will help us to change. यदि हम उसको अनुमति देते हैं वो हमारे अंदर आकर हमें बदल देता है. Number 2, दूसरी बात, the fire of God illuminates. परमेश्वर का आग हमें जलाता है. What do people see when they look at us? जब लोग हमें देखते हैं वह क्या देखते हैं?
What do people see when they look in us? जब लोग हमें देखते हैं वह क्या देखते हैं? When people see, when they look at us, what do they see? जब लोग हमें देखें तो उन्हें क्या दिखाई देता है? They should see, because the fire is in us. हमारे अंदर का आग उन्हें दिखाई देना चाहिए। And because the fire is in us, the love and the power. क्योंकि आग हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य भी हमारे अंदर है। And if they can see the love and the power of God in us, or they should illuminate us. जब लोग हमें देखेंगे वे हमारे अंदर सामर्थ्य और प्रेम को देखेंगे। You know, when people look in us, then they look, the fire is in us, the love of God is in us, the power of God in us. These things illuminate us. जब लोग हमें देखते हैं, हमारे अंदर के आग को, हमारे अंदर के उस सामर्थ्य को और प्रेम को, यह सब हमें ज्योतिर्मय कर देता है। And how do you have the love of God? और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे आएगा? By drawing that love from Him. परमेश्वर से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हो। How you get the power of God? परमेश्वर का सामर्थ्य आपको कैसे मिलेगा? By coming in one accord. एक मन होकर जब आप इकट्ठे होते हो, And then the power of God will just pow in you. और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आके भर And देता है। these things will illuminate us among the others. और यह सब जब हमारे अंदर रहेगा, हम दूसरों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देंगे। Moses was attracted to the burning bush. जलती हुई झाड़ी के प्रति मूसा आकर्षित हो गया। Number 3, तीसरी बात, the fire of God is not quenched. परमेश्वर की आग को बुझा नहीं सकते हैं। The fire of God is not quenched. Leviticus chapter 6, verse 13. लय व्यवस्था अध्याय 6 वचन 13। God associate the fire with the altar. परमेश्वर उस आग को वेदी के साथ जोड़ता है। At an altar of prayer. प्रार्थना की वेदी। You may be on your last mile. हो सकता है कि अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंच गए हो, But if you will kneel at the altar of prayer of God, यदि आप परमेश्वर की वेदी के सम्मुख घुटने टेकोगे, God will reignite the fire within you. परमेश्वर आपके अंदर उस आग को जलने देगा, दोबारा जलने देगा। It was said by Jesus, यीशु ने ऐसा कहा, a bruised reed will not break, and a smoking flax shall not he not quench. वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। Okay? And a smoking flax shall he not quench, yeah? और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। Some of you are like a bruised and broken reed. आप में से कुछ कुचले हुए सरकंडे के समान हैं। Your life is empty, आपका जीवन खाली है, and the fire is almost out. आपके अंदर आग नहीं है, It is just smoking. सिर्फ धुआं देती है। But Jesus is not going to let you be like that. लेकिन यीशु आपको ऐसी स्थिति में न छोड़ेगा। Jesus will not let you be quenched. वो आकर के आपकी प्यास को बुझाएगा, Ready to set you aflame for Him again. फिर से आपके अंदर आग को जलाकर अपने लिए खड़ा करेगा। You know, if you are in this church, यदि आप इस कलीसिया में हो, no matter how stubborn you are, भले आप जितने भी जिद्दी हो, I believe मैं विश्वास करता हूं that Jesus is not done with you. यीशु ने आपके अंदर पूरा काम नहीं किया है। That if you would humble yourself, यदि आप अपने आप को नम्र करोगे, that fire would not be quenched. वो आग आपके अंदर न बुझेगी। That He can use you, reignite you, because every person is important. वह आपका इस्तेमाल करेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके लिए मुख्य है। You may have an attitude, but when God reignites you, that attitude will आपके अंदर की change. विचारधारा बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जब परमेश्वर आपको अपने आग से जब भरेगा, आपके विचार बदल जाएंगे। He wants to set you aflame again. वह आपको फिर से आग से भरना चाहता है।
Hello, people of God. If you're going to be here, I believe, maybe stubborn like a donkey, but then I will bank you up until you become a humble donkey. You're still a donkey, but a humble one. आप यदि यहाँ पर हो, यदि आप बहुत ही जिद्दी गधे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको तब तक सुधारूंगा जब तक कि आप एक नम्र गधे बन जाओगे, so that God can use you. ताकि परमेश्वर आपका उपयोग करे. Jesus entered Jerusalem riding on a donkey. यीशु यरूशलेम गया, वह गधे पर गया. And if he can ride on a donkey, he controlled the donkey well, eh? यदि वो गधे के ऊपर गया सवार होकर, तो उसको अपने नियंत्रण में रखा उसने. Number 4. चौथी बात, The fire of God doesn't stand still. परमेश्वर का जो आग है वह स्थिर नहीं रहता. On the day of Pentecost, 120 of them get on fire. पेंतिकुस्त के दिन में 120 जन आग से भर जाते हैं. By the end of the day, 3,000 were on fire. जब उस दिन का अंत होता है, 3,000 लोग आग से भर जाते हैं. That is why I told you, I'm not worried about the church growth. मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मैं कलीसिया की गिनती के विषय में नहीं If चिंता you करता. are on fire, यदि आप आग से भरे हो, when you go out, जब आप बाहर जाओगे, that fire will spread. वो आग फैल जाएगी. From you, one person can become 3,000. Can you imagine? एक व्यक्ति 3,000 बन सकते हो. That's what happened on the day of Pentecost. 120 of them on fire. 120 थे आग से भरे हुए. By the end of the day, 3,000 were on fire. It is contagious. उस दिन के अंत में 3,000 लोग आग से भर गए. वह फैलता गया. The fire of God always spread. परमेश्वर का आग फैलता जाता है. Once you get on fire, you're going to spread that जब fire. आप आग से भर जाओगे, वह आग फैलती जाएगी. You got to spread the message of hope. आपको इस आशा के संदेश को फैलाना है. You got to spread the message of hope. आपको इस आशा के संदेश को फैलाना है. Hello, people of God. The fire can't stand still. परमेश्वर की जो आग है वह निष्क्रिय नहीं हो सकती. In Acts chapter 8, प्रेरितों अध्याय 8. they were scattered because of the persecution. सताव के कारण लोग वहां बिखर गए थे. But it didn't stop the fire. लेकिन उस आग को वे रोक नहीं सके. That persecution was to stop the fire, but the fire even spread more. सताव के कारण आग को बुझा नहीं सके, लेकिन वह आग और ज्यादा फैलती गई. Hello? The fire was not stopped from spreading, it was spreading even more. कोई भी उस आग को फैलने से नहीं रोक सका. आग फैलती गई. So the fire spread to Samaria. आग सामरी उस देश में फैल गई. And it says this, और यहाँ लिखा है, there was great joy in that city. और उस शहर में बहुत आनंद था. Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हो. You get filled with the fire. आप आग से भर जाते हो. You can't contain that fire. आप उस आग को अपने नियंत्रण में You नहीं got रख to सकते. spread that fire. आपको उस आग को फैलाना है. And that fire touches somebody. और वह आग दूसरों को जाकर छूता है. that place will have the joy of the Lord. उस स्थान में परमेश्वर का आनंद आ जाएगा. That is why preach the message of hope. इसलिए परमेश्वर की इस आशा के संदेश को प्रचार करिए. Acts 1:8. प्रेरितों अध्याय 1:8. But you shall have power after the Holy Ghost, the fire, has come upon you, and you shall be my witnesses of me to the ends of the earth. So, but you must spread the fire. आपको इस आग को फैलाना है. Don't wait for persecution to come. सताव आने के लिए इंतजार न करें. And I tell you, it's coming. मैं कहता हूं कि वह आ ही रहा है. It's coming. आ रहा है. But don't wait for it to come. Spread the fire so that he will be held back.
आप इस आग को फैलाइए ताकि वो सताव रुक जाए। Number 5. पांचवी बात, The fire of God restores broken and shattered lives. परमेश्वर का आग टूटे हुए उस जीवन को, बिखरे हुए उस जीवन को पुनर्स्थापित करता है। So the fire of God restores broken lives. परमेश्वर का आग आपके टूटे हुए उस जीवन को पुनर्स्थापित करता है। In Luke 9, James, John, and Jesus are mistreated by the Samaritans. लूका अध्याय 9 में हम देखते हैं याकूब, यूहन्ना, पतरस और यीशु, इनके साथ सामरी लोग सही बर्ताव नहीं करते हैं। James and John asked the Lord, याकूब और यूहन्ना यीशु से पूछते हैं, shall we call down fire on them? क्या हम आग को उनके ऊपर उतार दें? Jesus said, you don't know what spirit you're of. यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। For the Son of Man परमेश्वर का पुत्र has not come to destroy men's life, but to save them. मनुष्य के जीवन को नाश करने नहीं आया है, उन्हें बचाने के लिए आया है। If we want revival, we have to be filled with the fire of God. यदि हमें बेदारी की जरूरत है तो हमें परमेश्वर की आग से भर जाना है। In our churches, अपनी कलीसिया में we have to be consumed by the fire, हम उस आग में भस्म हो जाएं, that the Pentecost can become here. ताकि यह जगह पिन्तेकुस्त का दिन हो जाए। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।